We'll be waiting for 2 more minutes to start the class, so that if anybody else is wishing, he or she can join the class, and then we will start. In between, you have got any query regarding categorization of income into domestic income and national income, you can ask. Means how can we categorize income into domestic income and national income? This much we have discussed. Anyone has got any query regarding the topics we have discussed as of now? You have got any query, beta? Anything you would like to ask? Any question, you can raise your hand and then we will start today's topic. Anything you would like to ask? We have completed one kind of topic and we will be going topic by topic in this unit. When we will finish all this, then we would have completed 4 chapters. So I am teaching this national income as a unit, not chapter wise. Okay. So cameras are on, that is good. Anything anybody would like to ask? I can see that Manveer Singh, beta आपका कैमरा स्विच ऑफ है, इसे स्विच ऑन कीजिए प्लीज. Switch on your camera, Manveer Singh. Okay. Any question from anyone? No question. तो मैं recap कर देता हूँ एक बार बेटा. Till now we have discussed circular flow of income, stock flow, nominal flow, physical flow. Then we have discussed domestic territory and citizenship and residentship. We have discussed these much topics. Now जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत कॉमन टॉपिक है, वो आप सबको पता है, आप सबकी डेली लाइफ में यूज होता है, अभी भी उसमें से आप कुछ ना कुछ यूज डेफिनेटली कर रहे होंगे. I'll just be चलिए साहब. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपने लिखना है, 2-3 डेफिनेशन ही लिखनी है आज भी हमने, और ये बहुत आसान सी चीज है. फर्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे फाइनल गुड्स. फर्स्ट हेडिंग बेटा आप लिखेंगे फाइनल गुड्स. अक्षय बसी और कैमरा स्विच ऑफ. मन्नत, मनवीर, बेटा कैमरा स्विच ऑन रखना है. अगर आपने कैमरा स्विच ऑफ करना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यूट्यूब पर. दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ द क्लास. We all need to follow it, include myself. I never switches off my camera. So this is the protocol of the class and we need to follow this. Akshay Basi. बैठ जाइए, अपना कैमरा एक जगह रख लीजिए क्योंकि अब आपको लिखना भी पड़ेगा कुछ ना कुछ. मनवीर सिंह, ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़ के काम नहीं चलेगा बेटा. इसे एक जगह रख दो मोबाइल को टेबल पे या कहीं, और एक पेन और पेपर ले लो. एक कॉपी जो आपने बनाई होगी स्कूल की वो ले लो. चलिए, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू गुड्स. बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे, इकोनॉमिक्स में भी है, वैसे रियल लाइफ में भी. गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सर्विसेज जो होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में आती हैं. ये एक उसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन उनके अलावा भी उसका एक क्लासिफिकेशन होता है बेटा. ठीक है. तो गुड्स को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर हम एक वे से क्लासिफाई करेंगे, आगे चल के दूसरे वे से क्लासिफाई करेंगे. तो पहला आप हेडिंग लिखिए फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स, जैसे फाइनल होता है ना, FINAL, फाइनल गुड्स.
फाइनल गुड्स कौन से होते हैं बेटा, आप लिख लेते हैं हम लोग। इट रेफर्स टू दोज गुड्स, लिखिए, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which are either used for consumption, which are either used for consumption or either used for consumption or for investment or for investment. It refers to those goods which are either used for consumption or for investment. Full stop. गुड्स फुल स्टॉप के बाद लिखिए, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं इसे। गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स are known as consumer goods. Goods purchased by consumers are known as consumer goods. And goods purchased by firms and goods purchased by firms are known as goods purchased by firms are known as capital goods. Are known as capital goods. Full stop. These capital goods, THESE, these capital goods are used. These capital goods are used for capital formation. These capital goods are used for capital formation. Are used for capital formation. Full stop. अब इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं। लेट मी मेक इट हाईलाइट फॉर एवरीवन। फाइनल गुड्स जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यूज होते हैं कंजम्पशन के लिए और कैपिटल गुड्स यूज होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कंज्यूमर गुड्स यूज करते हैं हाउस होल्ड्स, कैपिटल गुड्स यूज करती हैं फर्म्स। देखिए ये मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूं, आप चाहें अगर आपको वैसे क्लियरली विजिबल होगा तो आप इसे डायग्राम को बना भी सकते हैं। ये मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। और ये भी आपने डायग्राम के फॉर्म में अपने जहां पे आपने डेफिनेशन लिखी है उसमें थोड़ी जगह आप छोड़ दें ऐसे 5-6 लाइंस, और ये जो डायग्राम मैंने सेंड किया है सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को आप वहां पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, बना सकते हैं डायग्राम। चलिए अब फाइनल गुड सबके समझ में आ गया? किसी ने पूछना है देख लीजिए जल्दी से, यू कैन रेज योर हैंड।
फाइनल गुड आ गया बेटा सभी के समझ में? पूछना है किसी ने जल्दी से? यू कैन रेज योर हैंड, यू हैव गॉट अ चांस. एनीबॉडी हु इज स्टिल नॉट क्लियर व्हाट फाइनल गुड इज कैन आस्क. अब देखिए जो पेन आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा गुड है, स्टीफन से पूछते हैं. स्टीफन अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग बेटा, अनम्यूट करो स्टीफन. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ बेटा, ये पेन जो आप यूज कर रहे हो ये फाइनल गुड है, तो ये कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? सर कंज्यूमर गुड. पक्की बात है? चलिए सही जवाब दिया है इन्होंने. अक्षय बसी अनम्यूट करो. थैंक यू बेटा. स्टीफन म्यूट योरसेल्फ. अक्षय कहाँ है? अक्षय, हाँ बेटा अनम्यूट करो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, पूछिए. सर जो स्टॉक होते हैं वो भी कैपिटल गुड ही हो गए, जैसे हम स्टॉक खरीदते या बेचते हैं? जो गुड्स हम खरीदते हैं और बेचते हैं? सर स्टॉक जैसे हाँ मैं समझ गया. फॉर इन्वेस्टमेंट एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, ये मैंने परचेज किया, खुद यूज नहीं किया और दूसरे को बेच दिया, ये पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ, उसका बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फाइनल गुड समझ गए सभी? फाइनल गुड के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अब आप लोग, इंटरमीडिएट गुड्स. और क्लास का टाइम जो है वो 9 बजे का है, 9:15 या 9:10 का नहीं है. आप 8:55 पर रेडी हो जाया करो बेटा. आप 9 बजे देखते हो मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है. 5 मिनट पहले बी रेडी फॉर द क्लास. इंटरमीडिएट गुड्स लिखिए. इट रेफर्स टू इंटरमीडिएट गुड्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें हमने लिखना है इट रेफर्स टू दोज गुड्स. It refers to those goods which are used. It refers to those goods which are used either for resale, either for resale, RESALE, either for resale or for further production, either for resale or for further production in the same year, for further production in the same year. इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंने लास्ट में आपको दिखाई है. फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, फुल स्टॉप. देयर डिमांड, THEIR, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन फाइनल गुड्स. देयर डिमांड, जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं उनकी डिमांड फाइनल गुड पे डिपेंड करती है. देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन फाइनल गुड्स. So they are also known as derived demand goods. Derived, DERIVED, also known as derived demand goods, also known as, so they are also known as derived demand goods, full stop. अब देखिए यहां पर भी we need to see that जैसे हमने फाइनल गुड के दो टाइप देखे हैं कि कंज्यूमर भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, ऐसे ही we need to remember that intermediate गुड जो होते हैं वो भी दो पर्पस के लिए यूज होते हैं बेटा. फर्स्ट है रीसेल और सेकंड है फर्दर प्रोडक्शन.
इनमें से किसी दोनों एक काम के लिए हम इंटरमीडिएट गुड को यूज करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंटरमीडिएट गुड का? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है बेटा उसका कि इन द सेम ईयर, हमने लिखा है ना फर्स्ट सेंटेंस में, आप देखें इन द सेम ईयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज कर लीजिए, पहले तो मैं आपको इंटरमीडिएट गुड बताता हूं क्या होता है। कोल होता है, कोल, कोयला बोलते हैं कोल, वो हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए जो ये ब्रिक क्लिन्स होती हैं, जैसे ईंट का यहाँ पे पट्टा शायद उसे बोलते हैं, जहां पर ईंट बनती है, ब्रिक्स बनती हैं, वहां पर एज ए फ्यूल हम कोल यूज करते हैं। वो जो बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं उनमें यूज करते हैं कोल को हम एज ए फ्यूल, ठीक है। आई होप इतना हमें पता है। अब उसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए मेरा एक ब्रिक क्लीन है जहां पर मैं ब्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैंने 1 टन कोल परचेज किया 1 मार्च को। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बताने वाला हूं। 1 मार्च को मैंने 1 टन कोल परचेज किया और 31 मार्च को जब मैंने दोबारा से देखा तो मुझे पता लगा कि ½ टन जो है उसमें से वो कंज्यूम हो गया है, ½ टन मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। आधा मैंने यूज कर लिया और आधा मेरे पास बचा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है हमें? अब नेक्स्ट डे कौन सी डेट आ जाएगी? नेक्स्ट डे आ जाएगी 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल मींस स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये भी पता है हम सबको कि 1 अप्रैल से मेरा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिए, ये देखिए, इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले सुन लीजिए। 1 अप्रैल को वो ½ टन कोल जो बचा हुआ है, जो 31 मार्च को इंटरमीडिएट गुड था, 1 अप्रैल को वो फाइनल गुड बन जाएगा बेटा। कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डेट चेंज हुई है। आपका कोई भी इंटरमीडिएट गुड 1 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में फाइनल गुड बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसे हम अब कहां प्लेस करते हैं या फाइनल गुड क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है फाइनल गुड क्योंकि अब जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जितना भी मेरा इंटरमीडिएट गुड 1 अप्रैल को अवेलेबल होता है उसे मैं चेंज इन स्टॉक में प्लेस करता हूं, चेंज इन स्टॉक में रखता हूं, और चेंज इन स्टॉक में मेरे पास जितना भी स्टॉक होता है वो सब फाइनल गुड में आता है। चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वो चेंज इन स्टॉक आ जाता है, उस चेंज इन स्टॉक को मैं फाइनल गुड में प्लेस करता हूं, और ये क्योंकि चेंज इन स्टॉक का पार्ट बन जाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसीलिए इसे हम इंटरमीडिएट गुड से फाइनल गुड में ट्रांसफर कर देते हैं। बोर्ड में या सीबीएसई में इसका क्वेश्चन ठीक ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैंने अभी न्यूमेरिकली आपके साथ डिस्कस किया है। वो कहेगा कि हमने ये कोई इंटरमीडिएट गुड परचेज किया, इतना यूज कर लिया, इतना बचा के हम नेक्स्ट ईयर में ले गए, तो आइडेंटिफाई करो इसमें से क्वांटिटी वाइज। तो आपने अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि जो इंटरमीडिएट गुड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव हो जाता है वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहता, चेंज इन स्टॉक में प्लेस होने की वजह से फाइनल गुड में चला जाता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। अब दोनों गुड हमने डिस्कस कर लिए हैं, देखिए उसमें से कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क यू कैन आस्क। कुछ भी पूछना है किसी ने, यू कैन रेज योर हैंड बेटा। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड की डेफिनेशन में कोई भी बात अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो नाउ इट इज योर टर्न टू आस्क। अब जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन एनीवन? नहीं है कोई क्वेश्चन तो मैं पूछ लेता हूं अब एक क्वेश्चन, फिर आपसे अनम्यूट करके उसका आंसर लिया जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है? कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ऐसे, या विल यू इंक्लूड फॉलोइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स, गिव रीजन, और विल यू इंक्लूड फॉलोइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। And if we are not giving reason for our answer, that means
no mark will be assigned or given to us. याद रखिए, no reason no marks. ठीक है, चलिए अब मैं पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन. fertilizers used by the farmer. fertilizers used by the farmer. आप इसे इंटरमीडिएट गुड में रखेंगे या फाइनल गुड में रखेंगे? चलिए पूछ लेते हैं. प्रभजीत सिंह बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज. गुड मॉर्निंग Sir, intermediate goods. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Intermediate goods, I think. वाई? Sir, because crop is our final good. Exactly, we are using fertilizer for further production of crops. फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं ना हम इसे फर्टिलाइजर को, तो इसलिए इसे इंटरमीडिएट गुड में कैटेगराइज करेंगे. वेरी गुड, शाबाश. चलिए साहब अब और पूछ लेते हैं. स्कूल बस परचेज्ड बाय स्कूल. ए न्यू स्कूल बस परचेज्ड बाय स्कूल. तरुणजोत सिंह अनम्यूट कीजिए. तरुणजोत सिंह, शाबाश, अनम्यूट करो. हाँ, वेरी गुड. तरुणजोत. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. बेटा अगर हमारा स्कूल एक नई बस परचेज करता है तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड में रखेंगे या फाइनल गुड में? सर इंटरमीडिएट गुड. वाई बेटा? सर बिकॉज हम बस को फर्दर यूज के लिए परचेज कर रहे हैं. अच्छा, थैंक यू. चलिए इसे रिकन्फर्म कर लेते हैं. किससे पूछें? दिव्या आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो. दिव्या. सर मे बी फाइनल गुड, बिकॉज जो बस थी वो हमारी फाइनल गुड थी और हमने एज ए कंज्यूमर हमने उसको अपने यूज के लिए खरीदी. वेरी गुड. लेकिन पहले ना मैं गुड मॉर्निंग बोलना होता है जब हम स्कूल में आते हैं. सॉरी, गुड मॉर्निंग सर. मैं 5 नंबर काट लूंगा तुम्हारे एग्जाम में. चलो खैर, तो यू आर सेइंग दैट इट इज अ फाइनल गुड. ओके, चलिए और इसे कंफर्म कर लेते हैं. विश्वजीत सिंह, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम हंसते हुए. अनम्यूट करो. सुबह सुबह ऐसी हंसी देखने को मिल जाए तो अच्छा लगता है कि चलो यार, इट इज गुड, पॉजिटिव. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हो बेटा? सर अच्छा हूँ सर. सर नहीं आता. वेरी गुड. क्या नहीं पता कि अच्छे हो? नहीं सर, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती, लेकिन चलो तुम्हारी हंसी देख के अच्छा लगा कि तुम नहीं आता तो भी ऐसे हंस रहे हो. जब आएगा तो कितना हंसोगे, है ना? चलो कोई बात नहीं. अच्छा गुरदीप सिंह आप अनम्यूट करो बेटा. सर आई थिंक फाइनल गुड में आएगा सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी. सर फाइनल गुड में. वाई? बिकॉज वी आर बाइंग इट फॉर आवर कंजम्पशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूम. ओके बेटा. चलो वंशिका अनम्यूट करो बेटा. सर आई थिंक इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, क्योंकि वो एजुकेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है उसके लिए यूज होगी अभी, इसलिए फाइनल सर्विसेज हमारी एजुकेशनल सर्विसेज है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है. एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. कोई बात नहीं. अब देखो एक छोटा सा ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, हमेशा याद रखना आप. अब हमें ये लगेगा जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपसे और कैसे पूछ सकता हूँ. कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, है ना? सेम बात रही. लगेगा यार कंप्यूटर भी कैपिटल गुड है तो वो भी फाइनल हो जाएगा. तो याद रखना किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में, किसी भी फैक्ट्री में जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स का मतलब इसी स्कूल में अगर मैं, अब तो यहाँ पे नहीं है, चौक होती है ना, चौक आपने देखी होगी, इतनी सी होती है, व्हाइट कलर की, वो बोर्ड पे चलती है. ग्रीन या ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, देखिए चौक आपने. वेरी गुड. तो वो जो चौक में यूज करूंगा वो होगी इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो कंज्यूमेबल है, शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगी.
इन्हीं ऑफिसेज में, इन्हीं स्कूल्स में अगर मैं कोई नॉन ड्यूरेबल गुड परचेज करता हूं या लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज परचेज करता हूं तो वो फाइनल गुड में आती है। याद रखिएगा, स्कूल में मैंने चौक परचेज की, इंटरमीडिएट गुड। इसी स्कूल में बस परचेज की, फाइनल गुड। ऑफिस में आपने पेपर परचेज किया, पेपर होता है ना ऑफिस में, प्रिंटर में लगा दिया, प्रिंट निकाल लिया, यूज कर लिया, है ना, इंटरमीडिएट गुड। ऑफिस में ही कंप्यूटर लगवा दिया, फाइनल गुड। तो आपने अब ये देखना है कि किसी भी ऐसी प्रोड्यूसिंग यूनिट में, वो स्कूल है या ऑफिस है या फैक्ट्री है, वहां पर अगर शॉर्ट टर्म वाली चीज है, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कंज्यूमेबल्स, कंज्यूम होने वाली चीज, वो हो जाएगी इंटरमीडिएट, और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें वहीं पर हो जाएंगी फाइनल। ठीक है, क्लियर? जैसे अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं जहां पे डस्टर बनते हैं, तो उसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए होती है, तो मशीन वो फाइनल गुड होगी, इंटरमीडिएट गुड नहीं होगी। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये जो स्पॉन्ज है, इसके पेस्ट करने के लिए जो पेस्ट मैंने मंगाया होगा, लेबर यूज की होगी, वो सब इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। क्लियर है? तो हमें पता लगा कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड भी दो टाइप के हो जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और जो हमारा ये इंटरमीडिएट गुड होता है, इट इज आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक दो इजी से क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। 5 liters ऑफ मिल्क परचेज बाय मिस्टर एक्स। 5 liters of goods purchased by Mr. X for his home. उसे कैटेगराइज कीजिए, और कौन कैटेगराइज करेगा उसे? ईशा अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आंसर? सर मेरे को लगता है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। वेरी गुड। क्यों लगता है बेटा? सर क्योंकि मतलब खत्म हो जाएगा, ये जब कंज्यूम करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मिल्क, तो खत्म तो कम टाइम के लिए यूज करना है। डेफिनेशन पे जाओ बेटा। यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब मिस्टर एक्स अगर 5 लीटर्स मिल्क अपने घर में कंजम्पशन के लिए लाते हैं ना, जितने भी कंज्यूमर गुड होते हैं वो सब फाइनल गुड होते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द नेक्स्ट लाइन। और ये आपसे कहूंगा कि आपने जहां डेफिनेशन फिनिश की है, एक लाइन छोड़ के वहां पे पॉइंट बना के, कोई हाइलाइटर बना के लिख लो। ऑल कंज्यूमर गुड्स ऐसे बनाओ, कोई भी ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और लिख लो। कोई भी ऐसे निशान बनाओ और लिख लो, याद रहेगा आपको ये। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स। ऑल कंज्यूमर गुड्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको बोर्ड के हिसाब से। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट उसी में लिखना है अभी, ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट all final goods are not consumer goods. But all final goods are not consumer goods. Full stop. लिख लिया आपने? अब मुझे बताइए, जो लिखा है आपने, इसी को एग्जामिनर या बोर्ड एक क्वेश्चन बना के दे देगा, फुल स्टॉप के बाद लिख देगा डिफेंड और रिफ्यूट। तो बताइए ये सही है या गलत है? कौन बताने वाला है? पहले पढ़ लो आराम से जो लिखा है, फिर उससे बताओ, उसका आंसर दो मुझे। कौन करने वाला है आंसर? यू कैन रेज योर हैंड और आई विल आस्क देन। इफ यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड देन आई विल आस्क। अच्छा, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, ध्यान से पढ़ लिया है। हम स्नेहा से स्टार्ट करते हैं। स्नेहा अनम्यूट करो बेटा। कहाँ गई स्नेहा? अनम्यूट करो स्नेहा, अगर आप सुन रहे हो मुझे। नॉट एबल टू लोकेट यू। अभी तो आई वाज एबल टू लोकेट यू, अभी आई वाज नॉट एबल। अच्छा, आप नहीं, हैंड रेज कर दिया, वेरी गुड। अनम्यूट करो बेटा। यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ थ्रू योर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बताओ सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम बीच में रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं, इसलिए सारे फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स नहीं होते। ओके, थैंक यू। सही बताया है इसने, आंसर को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है।
जो फाइनल गुड्स हैं उसमें कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ दूसरे कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं? कैपिटल गुड्स, है ना। फाइनल गुड्स में तो कैपिटल गुड्स भी होते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, क्योंकि जितने भी कंज्यूमर गुड है वो फाइनल गुड के अंडर ही आते हैं। लेकिन फाइनल गुड में सिर्फ कंज्यूमर नहीं आते, कैपिटल भी आते हैं, तो इसीलिए ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? अदरवाइज देन आई विल मूव फॉरवर्ड। कोई पूछना है किसी ने कुछ तो पूछ लीजिए बेटा, यू कैन रेज योर हैंड। Anything anybody would like to ask? You are welcome. Harjap Singh Dhatt, Diksha, Akansha, Gurdeep, Pridham Thakur, so many intelligent students we are interacting with. Akashpreet Singh, Pritika, Prabjeet, Sukhampreet जिसका नाम मेरे सामने आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, मन्नत, ईशा, राजवीर सिंह, वैशाली, जशनप्रीत कौर, अवनीत कौर, स्टीफन सहोता। कुछ पूछना है किसी ने? विश्वजीत सिंह, नहीं पूछना है? चलो अच्छी बात है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, अच्छे बच्चे हो, एकदम से जैसे मैं बोलता हूँ ना ऐसे ही समझ जाते हो एकदम कि हाँ सर ने ये कहा है और अब हम समझ गए। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी आदत कि तुम इतने ज्यादा मतलब तुम्हारी जो ग्रास्पिंग पावर उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बहुत हाई है, हाई IQ है तुम लोगों का। बस मेरे कहने की देर होती है और तुम एकदम से उसे कैच कर लेते हो, समझ जाते हो कि हाँ सर ने ये कहा है और इसका ये मीनिंग होगा। मतलब हमें इस साल बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो मैं लास्ट बैचेस में नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि वो बच्चे इतने होशियार नहीं होते थे आपकी तरह, उन्हें एक ही चीज बार बार बतानी पड़ती थी, आप एक बार में ही समझ जाते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए स्नेहा। सर एक यहाँ पर स्टेटमेंट है कि अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे कि हमने इसे सोल्ड नहीं किया, ये प्रॉपर उतनी पड़ी है इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये इसलिए है बेटा क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जब मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा, मैं 31 मार्च की रात को जब अपनी दुकान बंद करके जाता हूँ और मेरे पास 500 रजिस्टर होते हैं जो नहीं बेच पाया मैं, है ना। 1 अप्रैल को जब मैं आके दुकान खोलता हूँ तो वो रजिस्टर जो पिछले दिन इंटरमीडिएट गुड था, रीसेल के लिए था, अब मैं जब नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करता हूँ तो ये चेंज इन स्टॉक में आ जाएगा। मैं नए साल की बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करूंगा तो ये चेंज इन स्टॉक में आ जाएगा, और चेंज इन स्टॉक जो है वो फाइनल गुड का पार्ट होता है। इसलिए वही जो मैंने कोल वाला एग्जांपल दिया था, दैट एंड दिस बोथ आर सेम, है ना। अनसोल्ड स्टॉक जैसे इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, आप रीसेल के लिए परचेज करते हो। दुकानदार जो मार्केट में है, आप में से भी हो सकता है किसी के यहाँ कोई शॉप हो जिसपे आप वर्क करते हो, तो वो जो शॉप के लिए आप सामान, तैयार सामान परचेज करते हैं, दाल चावल फॉर एग्जांपल, या ईटेबल्स या ऑयल या एनीथिंग एल्स, वो आप बेचने के लिए, यानी कि 5 रुपये का परचेज किया, 5.5 रुपये का बेच दिया, बीच का 50 पैसे आपका प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितना सामान आप नहीं बेच पाते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में, दैट इज काउंटेड इनटू चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो चेंज इन स्टॉक में काउंट होता है, और फिर चेंज इन स्टॉक फाइनल गुड का पार्ट होते हैं, तो हम उसे फाइनल गुड में कंसीडर करते हैं। और यही स्पेसिफिकली यहाँ पर एक समझने की चीज है, क्योंकि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड तो आप देखने के बाद एकदम से समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दीक्षा अनम्यूट करो बेटा, दीक्षा अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा मेरे जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? सर ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा। चलो अपना लैपटॉप ये- बता दो, तुम्हारा लैपटॉप क्या है, फाइनल है या इंटरमीडिएट है? सर ये फाइनल है बाय सर, क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, मतलब अच्छा, वेरी गुड। लेकिन लॉन्ग। इसे नहीं बताया आपने, बिल्कुल शाबाश। लेकिन मैं इसे एक तरीके से और भी बता सकता हूँ, वो तरीका कौन सा है? एक तरीके से और, मन्नत आप बताओ, ये लड़की बहुत एक्टिव है, अनम्यूट करो, शाबाश। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। बताइए बेटा, आपका जो लैपटॉप या मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? फाइनल। वाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। अच्छा, और अगर आते ही टूट गया?
मोबाइल खरीद के लाए, अगले दिन टूट गया, फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं हुआ, फिर तो एक दिन के लिए यूज हुआ, फिर क्या बन जाएगा वो? ऐसा होता है। आपने देखा होगा भाई, फैमिली में, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में, कल मोबाइल आए थे यार, आज हाथ से गिर गया, टूट गया, ट्रक के टायर के नीचे आ गया, पानी में गिर गया, तालाब में गिर गया, नाली में गिर गया, ऐसे होता है मोबाइल का, आपने देखा होगा, सुना होगा। फिर वो फाइनल नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है उसका? इंटरमीडिएट, क्योंकि वो नाली में गिर गया। पता नहीं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, लॉजिक आप गलत लगा रहे हो। सिर्फ लॉन्ग टर्म मैंने वहां बताया, वो जो लॉन्ग टर्म मैंने बताया था वो कैपिटल गुड्स के लिए बताया था। अब याद रखिए, आप और हम सब हाउस होल्ड्स हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम सब कंज्यूमर हैं, और हम जो कुछ भी यूज करेंगे वो कंज्यूमर गुड में आएगा, और कंज्यूमर गुड फाइनल गुड होते हैं। ये भी लिखा है हमने, ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स। आप और मैं जो भी यूज करेंगे डायरेक्टली वो कंज्यूमर गुड है, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अच्छा, जैसे चलो लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हो, ये मेरे मार्कर की इंक है, ये 3 दिन में खत्म हो जाती है, तो ये इंटरमीडिएट गुड होगा या फाइनल गुड होगा? 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती, 2 दिन ही चलती है कभी कभी। तो कौन बताएगा इसका आंसर? हरजाप अनम्यूट करो, हरजाप सिंह भट्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये जो मार्कर इंटरमीडिएट है या फाइनल है? इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाई? सर बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर फर्दर कंजम्पशन। सर मार्कर में होने दी। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए आप लोग, ये फर्दर कंजम्पशन का जो फंडा है ये कैपिटल गुड में लगता है, कंज्यूमर गुड में नहीं लगता है। एज ए कंज्यूमर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, मैं जो भी यूज करता हूँ वो सब कंज्यूमर गुड है। एक ही गुड कंज्यूमर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना समझना है कि एक कंज्यूमर, आप या मैं जो भी यूज करेंगे वो कंज्यूमर गुड है, तो ये फाइनल गुड में आएगा। ठीक है, मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरा मार्कर, डस्टर, ये मेरा मास्क, ये देखिए ये मेरा मास्क, ये सैनिटाइजर है मेरा, ये सब चीजें कहाँ पे आएंगी? ये आएंगी फाइनल गुड में। क्यों? क्योंकि इन्हें मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं, और जिस गुड को मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूंगा वो कंज्यूमर गुड होगा। वहां पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म देखना है कैपिटल गुड में। कंज्यूमर गुड में ये देखना है कि मैं जो भी यूज करूंगा वो कंज्यूमर गुड होगा। वो मैं 1 दिन करता हूं, 1 साल करता हूं, 10 साल करता हूं, डजंट मैटर। मैं जो भी यूज करूंगा, आप जो भी यूज करोगे वो कंज्यूमर गुड है, और कंज्यूमर गुड फाइनल गुड होता है। क्लियर है? उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि एज ए हाउस होल्ड, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कंज्यूमर, बेसिकली मैं जो भी यूज करूंगा वो फाइनल गुड होगा। ऐसे तो आप ये कहोगे कि ये पेन भी इंटरमीडिएट गुड है बिकॉज इट इज यूज्ड इन फर्दर राइटिंग। नहीं, ये फाइनल गुड है बेटा, क्योंकि इसे मैं कंज्यूम कर रहा हूं। जिस चीज को मैं डायरेक्टली कंज्यूम करूंगा वो कंज्यूमर गुड होगा, और कंज्यूमर गुड फाइनल गुड होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो हेडफोन यूज कर रहे हैं, कुछ इन द ईयर कर रहे हैं, कुछ ओवर द ईयर कर रहे हैं, है ना? हाँ, हो सकता है कुछ वायरलेस वाले भी कर रहे हो, TWS जिन्हें बोलते हैं, ट्रू वायरलेस, तो वो सब कंज्यूमर गुड हैं। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात एज ए कंज्यूमर करेंगे, सपोज कर लीजिए मैं आज एक ईयरफोन खरीद के लाता हूँ और गलती से एक पैर मेरा उस पर रखा जाता है, दूसरे को मैं पकड़ के ऊपर उठाता हूँ, वो टूट जाता है। अब तो ये इंटरमीडिएट बन गया, क्योंकि मैंने तो इसे 2 घंटे यूज किया है। इसी को अगर मैं 1 साल कर लेता तो ये कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड बन जाता। नहीं, एज ए कंज्यूमर मैं जिस कमोडिटी को भी यूज कर रहा हूँ, वो बेड, चेयर, टेबल जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर आपका मोबाइल रखा है ना, सपोज कर लो एक चेयर परचेज करके लाते हैं और किसी वजह से वो खराब निकलती है और टूट जाती है अगले ही दिन, फिर तो वो इंटरमीडिएट बन गई, क्योंकि मैंने तो एक ही दिन यूज किया है उसे। ऐसे नहीं होता। आप एज ए कंज्यूमर जिस कमोडिटी को भी परचेज करेंगे वो 1 दिन के लिए हो। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, फ्रूटी देखिए आपने, गर्मी आ गई है, फ्रूटी आती है, फ्रूटी या कोई और ड्रिंक आता है, उसे परचेज करते हैं, खोलते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, वो तो इंटरमीडिएट बन गई। उसे तो हम 2 मिनट भी नहीं टिकने देते, 1 मिनट में ये जा वो जा खत्म, तो इसका मतलब तो वो इंटरमीडिएट हो गई। और उसी फ्रूटी को मैं लाके फ्रिज में रख दूं और 1 साल बाद पीऊं, अब वो फाइनल हो गई, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म यूज में आ गई। ऐसे नहीं होता है बेटा।
आप एज ए कंज्यूमर जिस कमोडिटी को भी यूज करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि यार ये ट्राउजर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो ट्राउजर में परचेज करके लाता हूँ। कनाडा से मेरे मामा जी आते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी मेरे लिए एक ट्राउजर लेकर आते हैं। वो ट्राउजर, क्योंकि भाई वो तो मामा जी बड़े हैं, उन्हें फैशन का क्या पता, वो बेकार सा ट्राउजर ले आते हैं, वो मैं अपने ब्रीफ केस में रख देता हूँ या जहां पे अपने लगेज में रख देता हूँ, अपनी अलमारी में रख देता हूँ। ठीक है, मामा जी चले जाते हैं, उन्हें क्या पता कि मैंने वो ट्राउजर पहना नहीं पहना। वो 2 साल बाद आते हैं तो मैं उन्हें दिखाने के लिए 2 साल बाद वो ट्राउजर निकाल के पहन लेता हूँ। अब तो ये फाइनल गुड हो गया क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज है। और जो मैंने मार्केट से परचेज किया था वो तो 3 महीने में ही पहन के मैंने खराब कर दिया, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन गया क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। नहीं, दोनों के दोनों फाइनल गुड हैं क्योंकि दोनों कंज्यूमर गुड हैं। मैं इतने एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि एज ए कंज्यूमर आप जो भी यूज करेंगे, एज ए कंज्यूमर आप जो भी यूज करेंगे वो फाइनल गुड होगा। क्लियर? अगर क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दो, जल्दी से दो सभी, चेक कर रहा हूं मैं यहाँ। 5 थम्स अप डेली लेके आया करो, मंगा लिया करो बाजार से। चलो अभी नहीं मिला मुझे। अर्लीन, तुम्हारा थम्स अप कहाँ है बेटा? हरजाब, ये दिखा देता है साइड में, हाँ चलिए थैंक यू। अब तुम्हारा एक थम्स अप मैंने ले लिया, याद रखना जब स्कूल आओगे इसे वापस कर दिया जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि फाइनल गुड क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें इन दोनों के बारे में। आपने सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि एज ए कंज्यूमर आप जो भी कंज्यूम करेंगे उसमें आप टाइम पीरियड नहीं देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एज ए कंज्यूमर मैं जो भी यूज करूंगा वो कंज्यूमर गुड है और कंज्यूमर गुड फाइनल गुड होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमने देखना होता है कैपिटल गुड में, कंज्यूमर गुड में नहीं देखना होता। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? अच्छा, तो आप सबने ओके बोल ही दिया, इसका मतलब इतना डिस्कशन आप समझ गए हैं। अब ये जो हमारा कैपिटल गुड होता है बेटा, इसे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज हमने कल पढ़नी है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वर्कशीट भेज दूं जिसमें से आप कैटेगराइज करेंगे कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ओके, अटेंडेंस देखो आपकी डेली लग रही है। बहुत सारे फ्रेंड्स अभी आपके नहीं आ रहे हैं, उन्हें बता देना जिनसे भी आपकी बात हो, अटेंडेंस की उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी वर्क आपको मिल रहा है वो वर्क आपने फेयर नोटबुक में करना है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से, अदरवाइज फिर तुम्हारी पूछिए जल्दी से, किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन? देख लीजिए एक बार, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे बुक में भी देख लिया करो। जो भी बुक आपने परचेज की है बेटा, एक बार उसमें भी आप उसे देख लिया करें। जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। थैंक यू रिदम ठाकुर। कल आप क्लास में नहीं आए थे तो कोशिश करेंगे डेली क्लास में आए आप। Any question from anyone? I am not seeing any hands raised. चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, ये 2 मिनट है आपके पास, देख लें। कुछ भी आपने पूछना है रिलेटेड टू दिस फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड ओनली। आज ये 2 टॉपिक ही हमने डिस्कस करने हैं। Anything anybody would like to ask? You can ask beta. So still no hands raised. चलिए, thank you very much for joining this class. See you tomorrow, same channel, same time, and take care of yourself.